जाएगा। Hello. Thank you, Arvind. That was indeed a mesmerizing performance. I now humbly urge our wonderful guest of honor, Captain Abhimanyu, to kindly enlighten the gathering with his vision and views. Please, sir. Very good evening, everyone. On the most important event of the day, on this annual day of Delhi Public School Durg, our beloved and most respected guest for this evening, the Finance Minister of the state of Chhattisgarh, Dr. O.P. Chaudhary ji, former IAS, our honorable guest, Mr. Vikesh Sen ji, MLA of this area, who is in fact also the key host of this event today, Mr. Gajendra Yadav ji, honorable MLA of Durg, my colleague in the Managing Society of Delhi Public School, Durg, Mr. Bhargav Singh Batra ji, and before I mention anyone else, one of the most important men in my life, my dearest, more than brother, Chief Editor of the Haribhumi and INS TV group, my dear Himanshu Dwivedi ji, respected Principal Dr. Yashpal Sharma ji, honorable guest Mr. Tiwari, District Judge Sahab, Dr. Sanjay Gupta ji, Principal, all the staff members, dear parents, and very, very dear students who have performed exceedingly well in all the events that we have seen in last more than 2 hours here today evening. It's indeed an honor and privilege to have amongst us Dr. O.P. Chaudhary ji, whose struggle we have seen in last couple of years to bring development to the state of Chhattisgarh, and we are very glad and happy today having him around as Finance Minister of the state of Chhattisgarh. We have no doubt that the state of Chhattisgarh is in very good hands and very able hands, and please give him a big hand of support. And all our best wishes for the coming 5 years and many more years in his life of public service. I am one of the hosts of the family of DPS Durg, and I am also very, very proud of the performance the students have shown here today on the stage. The very theme itself is so appealing. Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world, the whole globe is one family. What better theme we could think of while celebrating our annual day, and in a city like Durg and Bhilai, which is a cosmopolitan city, which has a cosmopolitan culture, and every parent of this city understands, appreciates, and dreams of making their child truly global world citizen. We are living in the era when now India is leading the world. We have recently witnessed the great achievements of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji while leading the G20, which is the representative of the bigger nations of the world.
And as Modi ji suggested, I'm only bringing up his words, that India has a message to give to the world in this 21st century, and that message is Vasudhaiva Kutumbakam. Our children, with the support of the teaching and non-teaching faculty, have tried to give this message today evening while saying वसुधैव कुटुंबकम भारत के मूल्यों का सार है, भारत की संस्कृति का सार है, भारत की सनातन संस्कृति जिसको हम कहते हैं एक पिंडे ब्रह्मांडे, समस्त ब्रह्मांड एक पिंड में है और हर पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। हम भारतीय संस्कृति जिसमें हम कहते हैं सर्वतंत्र संभाव, सभी मान्यताओं के अंदर एक आपस के अंदर एक समभाव बना रहे। हम कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक ही है। हम सब लोग अपने अपने तरीके से, अनेकों विद्वान अपने अपने तरीके से उस सत्य की व्याख्या करते हैं। उसी सार को लेकर के आज वसुधैव कुटुंबकम के इस थीम को लेकर के आज जो ये एनुअल डे, जो वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, मैं डॉक्टर यशपाल शर्मा जी और उनकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ। और प्रत्येक बच्चे ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और पेरेंट्स से, क्योंकि मैं एक पेरेंट्स के नाते जानता हूँ कि बच्चों की परफॉर्मेंस में जितना योगदान बच्चों का होता है, जितना योगदान उनके टीचर्स का होता है, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स तैयारी जो पेरेंट्स मिल करके कराते हैं, उसकी ड्रेस को लेकर के, उसके बार बार उसकी रिहर्सल को लेकर के, उसके एक्सप्रेशंस को लेकर के, उसकी डिलीवरी को लेकर के जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वह आप जब यहाँ अपने बच्चों को देख पाए हैं, निश्चित तौर पर आपको भी इस गर्व का एहसास हुआ होगा। इसलिए सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Thank you so very much, sir. We're indeed elated to hear you today. Though we pray for more. It's a great privilege now for all of us to get enriched with the vision and expert views today. Therefore, I urge humbly our Honorable Chief Guest, Mr. O.P. Chaudhary, to kindly address the gathering with his precious words of wisdom. Please, sir. आज इतने अच्छे कार्यक्रम का आप लोग आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए विशेष करके प्रिंसिपल साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक अलग ही स्टैंडर्ड, एक अलग ही स्तर मेरे को आज देखने को मिला और हम लोग लगातार बात कर रहे थे। आदरणीय कैप्टन साहब, आदरणीय हमारे विधायक जो है आदरणीय गजेंद्र जी, रिकेश जी, मेरे बड़े भैया आदरणीय हिमांशु जी, डीजे साहब, आदरणीय तिवारी जी, बत्रा साहब, प्रिंसिपल साहब और जूनियर कैप्टन जी, आप भी हमारे बीच आज उपस्थित हैं, और सारे पेरेंट्स, सारे शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का एक थीम रखा है जो मुझे लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण थीम। और जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा कि G20 का जो ध्येय वाक्य मोदी जी ने निर्धारित किया, वसुधैव कुटुंबकम, मैं इसमें अपना एक भारत की संस्कृति पे और बचपन में जो मैं फील करता था वो एक चीज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। बचपन में हमारे घर में बहुत सारे लोगों के घरों में लगी रहती थी और हमारे घर में भी एक फोटो लगी थी एल्बम के साथ, उसमें भगवान शिव थे और उनके साथ पार्वती जी बैठी हुई थी। कैलाश पर्वत का दृश्य था और उसमें एक साइड में गणेश जी को छोटे रूप में और दूसरे साइड में कार्तिकेय जी जो दोनों उनके पुत्र हैं, दोनों की फोटो थी। तो मैं उसमें देखता था और बचपन में मैं अपने दादाजी से पूछता था कि एक साइड में शिव जी का वाहन बैल बैठा रहता था और दूसरे साइड में पार्वती जी का वाहन शेर बैठा हुआ रहता था। दूसरी तरफ मैं देखता था कि
गणेश जी का वाहन चूहा रहता था, उसी के बगल में शंकर जी के गले में सांप लपेटाया रहता है और उसी के बगल में कार्तिकेय जी का जो वाहन है मोर रहता है। तो मैं पूछता था अपने दादाजी को कि बैल को तो शेर खा जाता है, चूहा को तो सांप खा जाता है और सांप को तो मोर खा जाता है, तो आखिर ये लोग एक साथ कैसे हैं? तो मेरे दादाजी बोलते थे यही भारत की संस्कृति है बेटा, यही भारत की संस्कृति है, एक दूसरे को खा जाने वाले लोगों को भी हम एक साथ रख सकते हैं। तो ये भारत की संस्कृति है जिसमें चूहा भी, सांप भी, मोर भी, बैल भी, शेर भी एक साथ रह सकते हैं। दुनिया कहती है जियो और जीने दो, भारत कहता है जियो और जीवन दो। ये भारत की संस्कृति है। इसी वसुधैव कुटुंबकम के ये वाक्य को आज आप लोगों ने सामने रखा। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे अनमोल संपत्ति है, अनमोल धरोहर है। जब पूरा पश्चिम प्रकृति के शोषण के आधार पर विकास का मॉडल खड़ा करता है, औद्योगिकरण का जो मॉडल है पूरी तरह से प्रकृति के शोषण पर आधारित मॉडल है। डार्विन कहता था कि भाई जो बड़ा है वो छोटा को खा जाएगा। हमारी संस्कृति कहती कि ऐसा नहीं, सब लोग एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जब हम पश्चिम का अंधानुकरण करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी का प्रॉब्लम भी पैदा होगा, ओजोन लेयर का डिके भी होगा। थोड़े दिन बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे और पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड, पूरी मानव जाति और सारे पृथ्वी के एग्जिस्टेंस पर संकट पैदा हो जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आज आप लोगों ने सामने लाया। उसके लिए मैं पूरी स्कूल की टीम को, आदरणीय प्रिंसिपल साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज हमारे प्यारे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में होंगे। आपके लाइफ का आने वाला 5-7 साल का जो पीरियड है वो आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके जिंदगी का टेक ऑफ पॉइंट डिसाइड करेगा। आप अपने जिंदगी का, अपने करियर का किस पॉइंट से शुरुआत करेंगे उसका डिसीजन आने वाले 5-7 सालों में होने वाला है। तो जो टेक ऑफ पॉइंट जितना ऊपर आप स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ के लिए और करियर के लिए, आप उतनी ऊंचाई तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। इसलिए सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके आने वाले 5-7 सालों का अच्छे तरीके से प्लानिंग करें, अच्छे तरीके से उसको आप विजुलाइज करते हुए प्लान बनाकर, प्लान ए आपका तैयार रहे, प्लान बी तैयार रहे, प्लान सी तैयार रहे। और जो दुनिया बदल रही है और विशेषकर जो भारत बदल रहा है, इट्स न्यू इंडिया, मोदी जी का नया भारत आ रहा है जो दुनिया को पूरी तरह से लीड करने की क्षमता रखता है। और ये जो इंडिया है इसमें ऐसे नए नए करियर के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं जिसको आप विजुलाइज करके आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे जगहों पर पहुंच सकते हैं। हम अमेरिका का पिछले 50-60 सालों में जो उनकी, पिछले 100 सालों में जो उनकी इकोनॉमिक जर्नी रही उसमें वॉरेन बफे भी पैदा होता है, उसमें बिल गेट्स भी पैदा होता है, उसमें ऐसे लोग पैदा हुए। वैसे ही आने वाले 20-30-40 सालों में भारत में भी अवसर पैदा होंगे। उसको कौन कैप्चर कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जो कहा कि 5-7 सालों को अच्छे से प्लान करना चाहिए, आपकी करियर प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है, मीडिया में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में, ये सब एक ऐसे फील्ड होंगे जो कि अनट्रेडिशनल वे में अनएक्सपेक्टेड हाइट तक आपको ले जा सकते हैं। तो उस सबको कैलकुलेट करना और समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम मैं सारे पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा कि सारे बच्चों को 99.8 और 99.7 के कंपटीशन में मत उलझाइए। होमवर्क के कल्चर से और बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आप उनका परसेंटेज तो इंप्रूव कर सकते हैं, जीनियस पैदा नहीं कर सकते। जीनियस वही पैदा होगा जहां पे उसको अपने अंदर की ताकत की, जहां उसको पहचान होगी, उसको अपने अंदर के पोटेंशियल की पहचान होगी। किसी भी बच्चे में स्किल की कमी नहीं होती है, टैलेंट की कमी नहीं होती है, प्रतिभा की कमी नहीं होती है। आजकल डिसेबल्ड लोगों के लिए जो विकलांग होते हैं, जिसे डिसेबल्ड कहा दिया जाता है, जिसे विकलांग कहा जाता था, उसके लिए आज कॉन्सेप्ट आया डिफरेंटली एबल्ड पर्सन।
उसमें और कोई दूसरी प्रतिभा जरूर होगी। हो सकता है कि एक दो चीजों को नहीं कर पा रहा है, बट दूसरे चीजों को जरूर कर सकता है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को रिस्पेक्ट करें, उसे अननेसेसरी प्रेशर ना दें, और उसके टैलेंट को जिस दिन रिस्पेक्ट करेंगे तो ही बच्चा जीनियस के रूप में फ्यूचर में खड़ा होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक बच्चा यूरोप में पैदा हुआ था बहुत सालों पहले, और उसके कुछ बच्चे को स्कूल में सबसे फिसड्डी छात्र माना जाता था, बैक बेंचर माना जाता था, और रोज उसको टीचर डांटते रहते थे। एक दिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को बुलाया और एक पर्ची थमा दिया, उस पर्ची को बंद करके दिया, इसे जाकर के अपनी माँ को देना और किसी और को मत देना। वो बच्चा घर में आया, खेलते कूदते अपनी माँ को पर्ची थमाई। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इतना फिसड्डी है, इसको हमारे स्कूल में रखने से क्लास के दूसरे बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से बाहर कर रहे हैं। उस पर्ची पे लिखा हुआ है। माँ को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ ने उस दुख को छिपाते हुए एक पॉजिटिव थॉट के साथ कहा कि बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि तुम इतने होशियार हो कि कल से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कल से तुम घर में ही पढ़ाई करो। उस बच्चे की होम स्कूलिंग हुई, वही बच्चा बड़ा होकर थॉमस अल्वा एडिसन बना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को उजाला करने का काम किया। तो ये ताकत होती है कि हम किसी के टैलेंट को रिस्पेक्ट करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको रिस्पेक्ट करें, तो ऐसी प्रतिभाएं हमेशा जन्म लेती है। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए, अपने सपने के लिए जुनून पैदा करिए, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। जिस दिन अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा विराट कोहली का। हम सब देखते हैं कि विराट कोहली इतना ग्लैमर है, इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। उस विराट कोहली के पीछे कोई भी जब जीवन में आगे बढ़ता है, कोई बनता है, बड़ा बनता है, तो उसके पीछे इतने सारी स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष होते हैं। विराट कोहली के लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो शायद आप कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। उस लेवल पर हम चीजों को जुनून में जी सकते हैं। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच हो रहा था। उस समय विराट कोहली महज 18 साल का था, 2006 की बात है। विराट कोहली 18 साल का था और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में रणजी का मैच हो रहा था। दिल्ली और कर्नाटका के बीच मैच चल रहा था और कर्नाटक ने 443 रन का स्कोर खड़ा किया था, और दिल्ली की टीम जब बैटिंग करने के लिए उतरी तो 46 रन पे 4 विकेट हो गए और दिन खत्म हुआ रणजी ट्रॉफी का। उस दिन का खेल खत्म हुआ और विराट कोहली नॉकआउट बैटिंग कर रहा था 10-12 रन के स्कोर पर, और वो घर चला गया। उसका घर दिल्ली में ही, आप सब लोगों को पता ही है। तो घर चला गया और वो घर में जाकर रुका था। अगले दिन आकर सुबह उसको बैटिंग करना था। वो नॉट आउट था, टीम स्ट्रगल कर रही थी, फॉलो ऑन का संकट था। 46 रन पे 4 विकेट थे, 46 पर 4। और उसी रात को लगभग 2:30-3 बजे उसके पिताजी का निधन हो गया। His father died that night। उसी रात को उसके पिताजी का निधन हो गया। सब घर में रोना जैसे होता है स्वाभाविक तौर पर, इतना बड़ा आफत हो तो चल रहा था। और जब वो भी बैठा हुआ था वहां पर, और जब सुबह के 7:30 बजे, तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी को शायद सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं बड़ा क्रिकेटर बन पाऊं। और उसने अपना पूरा किट उठाया, अपने सारे सामान उठाए और वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पहुंच गया। और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पहुंचकर उसने बैटिंग करी। कल्पना कीजिए कि जिस बच्चे के 18 साल के बच्चे के पिता की पार्थिव शरीर, डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई हो और वो बैटिंग करने के लिए उतरा। किस लेवल का डेडिकेशन रहा होगा, मैं बच्चों से विशेषकर कहना चाहता हूं, किस लेवल का डेडिकेशन रहा होगा, किस लेवल का जुनून रहा होगा, किस लेवल का कमिटमेंट रहा होगा कि वो बैटिंग करने के लिए उतरा और घर में पिताजी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसने 90 रन की पारी खेली और दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाया। तो कोई भी सक्सेस होता है तो उसके पीछे
बहुत सारा संघर्ष होता है और उस संघर्ष को हमको हैप्पीली करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। संघर्ष में ही हमको आनंद मनाना चाहिए। कई बार होता है कि हम एक सपने पाल लेते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं होता तो हम नेक्स्ट टाइम डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सबसे गलत सोच है। हमको अपनी कोशिशों का जश्न मनाना चाहिए, हमको अपने एफर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए। गीता भी यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दुनिया में अपना करियर अचीव करने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए इससे बड़ी फिलॉसफी कोई नहीं हो सकती, इससे बेस्ट डिप्लोमेटिक फिलॉसफी भी नहीं हो सकती। मैंने लाइफ में खुद इस चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट किया है और इस छोटे से लाइफ की जर्नी में इस चीज को रियलाइज किया है। तो आप अपनी कोशिशों का जश्न मनाना सीखें। जब तक आपके लाइफ में कठिनाइयां नहीं आएंगी आप मजबूत नहीं बन सकते, और जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे तो बड़े सक्सेस के लिए, बड़े एफर्ट्स लगाने के लिए आप कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। अभी आप लोग 12th फेल मूवी देख रहे होंगे, वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मनोज शर्मा, और मैं एक साथ यूपीएससी का रिजल्ट देखने यूपीएससी के प्रांगण में गए थे और एक साथ हम दोनों रिजल्ट देखा था। उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो अटेम्प्ट उसका लास्ट अटेम्प्ट था और श्रद्धा भी थी साथ में। तो मनोज के लाइफ को मैंने देखा बहुत करीब से, कितना स्ट्रगल उस इंसान ने किया। वो तो स्ट्रगल से कभी उसको झेल के कि भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, जरा सा भी कुछ होता है सोचने लगता है अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इस तरह का थॉट आता है। जब भी हमारे लाइफ में कठिनाई आए हमको उसे वेलकम करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे कठिनाई दी है, इसका मैं सामना करके मजबूत बन के उभरूंगा और बड़ी सफलता के लिए आप मुझे तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का आपको थॉट रखना चाहिए। सुपर 30 मूवी बनी आनंद जी के ऊपर, ही इज आल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। ऋतिक रोशन ने आनंद जी का रोल प्ले करते हुए कहा है कि इनने अपने लिए खूब चिकने सड़क बनाए और हमारे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे छोड़ दिए, यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। तो इस सोच के साथ हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ। इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ट्रेडिशनल जो हमारी करियर को लेकर के सोच हुआ करती थी उससे हमको बदलने की जरूरत है। मैं 2 साल अपनी स्टूडेंट लाइफ का इसी भिलाई शहर में रहा हूँ, प्राइवेट टाइप ग्रेजुएशन करता था और मैं देखता था उस समय लोग बोलते थे यहाँ पर कि सूरज कहाँ से उगता है, तो पूरब से। पूरब में क्या है, तो भिलाई स्टील प्लांट है, तो मेरे बच्चे को IIT ही जाना चाहिए, अगर नहीं जा पाया तो उसका जीवन भी व्यर्थ और मेरा जीवन भी व्यर्थ, ऐसे पेरेंट्स सोचते थे। सूरज कहाँ डूबता है, तो पश्चिम में क्या है, सेक्टर 9 का हॉस्पिटल है। तो सारे पेरेंट्स सोचते थे कि मेरा बच्चा अगर एम्स में नहीं जा पाया, MBBS नहीं कर पाया, तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है, बच्चे का भी जीवन व्यर्थ है। इस सोच के साथ हमने बहुत सारे बचपन मारे हैं। हमने इस सोच के साथ बहुत सारे बचपन को अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन और विराट कोहली बनने से रोका है। इस क्राइम को मत करिएगा। पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे के टैलेंट को रिस्पेक्ट करिए, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत जीनियस बनेगा। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पर ये कह रहा हूँ, कोई चीज मायने नहीं रखती है अगर आपका थॉट प्रोसेस सॉलिड है, अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अचीव करने से नहीं रोक सकती है। अभी हिमांशु भैया और हम आ रहे थे तो मैं बोल रहा था कि कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए थे और एयरपोर्ट से बाहर आते ही तो कांग्रेस के पोस्टर लगे हुए थे, तो मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग विपक्ष में होते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सत्ता उखाड़ने के लिए आज ऐसे ही काम कर रहे होते। तो लाइफ में एक्सपेक्टेशन ना पाल के अगर आप अपने सक्सेस फेल्योर से ऊपर उठ के लाइफ को जिएंगे तो हर सक्सेस आपका कदम चूमने आएगी। जब इसीलिए जो थॉट है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी को झक मार के पैर चूमने आएगी। इस सोच के साथ आप लाइफ को जिए, जीवन हमेशा आगे आपको अच्छा से आगे बढ़ाएगी। ये वर्ल्ड आज की जो दुनिया है ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है। आज का जो भारत है उसमें भी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का ही रूप है। आप दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की
कुर्सी उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी के 4 पीढ़ी से उद्योगपति थे, उसके दादा परदादा, तब आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कैप्टन साहब लोगों ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की अपने लाइफ में, सारे ब्रदर्स मिल करके। उन्होंने कोई अपने इसी जनरेशन में सफलता अर्जित की है। दुनिया के रिचेस्ट लोगों की सूची आप उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी कोई इनोवेशन किया होगा, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की होगी, और उसमें से ज्यादातर अपनी स्कूल और कॉलेज के बैक बेंचर्स होंगे, स्कूल और कॉलेज के ड्रॉप आउट होंगे। उन्होंने कुछ नया सोचा, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से इनोवेशन किया, और आज दुनिया के सबसे बड़े ओहदे पर, रिचेस्ट लोगों की सूची में, सबसे सफलतम लोगों की सूची में बैठे हैं। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सरस्वती की उपासक बनिए। लक्ष्मी तो अपने आप पीछे आएगी, दुनिया बदली हुई दुनिया। लोग बोलते थे कि मैं आईएएस था, 13 साल आईएएस में रहा, बहुत कठिनाइयों के साथ मैं आईएएस बना था। मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं 7.5 साल का था, मेरे पिताजी का निधन हो गया था। स्कूल में टीचर थे, मेरी माँ 4वीं क्लास पढ़ी हुई है। मैं 12th क्लास तक ऐसे स्कूलों में पढ़ाई किया हूँ जहाँ ना फिजिक्स का लेक्चर होता था, ना मैथ्स का, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना बायो का, ना हिंदी का। एक लेक्चर था हमारे स्कूल में अंग्रेजी का, और पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी जब हम 12th क्लास पढ़ते थे। ऐसे परिस्थितियों से मैं बाहर आया, उस परिस्थितियों से निकला, और इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मैं आईएएस में रहा, 13 साल आईएएस की जर्नी रही। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो कुछ बेस्ट हो सकता था छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों के लिए मैंने काम किया। 13 साल की जर्नी के बाद मैंने रियलाइज किया कि भारत के लोकतंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कोई लव करता है, कोई हेट करता है। उसमें चैलेंजेस बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है, काम खिंचाई बहुत है। तो उसके कारण लगता है जिसका लाइफ ठीक ठाक चलता रहता है कि मैं कहाँ इस पचड़े में पड़ूं। हम हर एक की सोच यही रहती है तो नाली है, कीचड़ है, गंदा है, इस तरह की बात बोलते हैं। मेरे को चाणक्य का एक स्टेटमेंट हमेशा प्रेरता रहता था, अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते। तो मैंने सोचा कि भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। 5 साल में पूरे हमारे पॉलिटिकल जर्नी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों को लगता है कि इनका बड़ा खराब टाइम चल रहा है, तो बट दैट वाज नॉट बड़ा खराब टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस लाइफ को मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ परिपक्वता आई, विनम्रता आई, बहुत कुछ आया। उन 5 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। आई रियली लव दैट 5 ईयर्स। उसको भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितने सफलता के साल होते हैं। और सरस्वती की उपासक होने का कई सारा लाभ मिला। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को पहले ही पढ़ता था, समझता था, उसको खुद के लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया, और जितनी सैलरी सरकार मुझे आईएएस में देती थी उससे अब 4 गुना 5 गुना मैं इनकम टैक्स देता हूँ भारत सरकार को, स्टॉक मार्केट के थ्रू काम करके। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज। आपको अगर नॉलेज है तो आपको किसी के सामने लाइफ में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, आप सरस्वती के उपासक बनिए। सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोगों को लाइफ में इतनी ऊंचाई मिले कि आप सभी बच्चे जो आप सिग्नेचर करते होंगे वो एक महज सिग्नेचर